علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کے خلاف آلدو بہت زیادہ کیسز موجود ہیں، لیکن ایک اور کیس کا انکشاف خود عمران خان نے اپنی زبان سے کر دیا ہے، اور وہ ہے منی لانڈرنگ کا کیس۔ عمران خان کی طرف سے انکشاف سامنے آ گیا ہے، اور اس انکشاف کے بعد اب عمران خان کے پاس بچنے کے امکانات بہت ہی زیادہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ جو انکشاف عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا وہ میرے اور آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے یا کسی نجی محفل میں نہیں کیا گیا، بلکہ عدالت کے روبرو بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کیا گیا۔ اور اس بات کا عمران خان صاحب ثبوت دینے میں ناکام رہے کہ یہ جو پیسے انہوں نے ملک سے باہر بھجوائے تھے یہ کس مقصد کے لیے بھجوائے تھے، اور وہ مقصد کیسے حاصل کیا گیا۔ یہ انکشاف آج ہوا ہے، اور اس انکشاف کے بعد عمران خان صاحب کے لیے منی لانڈرنگ کیس کا ایک اور دروازہ کھلنے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا اس حوالے سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ معاملہ ہے عمران خان کا خواجہ آصف صاحب کے خلاف 10 ارب روپے کے حد تک عزت کے دعوے کا، اور اس دعوے پر آج سماعت ہوئی، اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر موجود تھے عدالت میں، جہاں پر خواجہ آصف صاحب کے وکیل کی طرف سے عمران خان پر جرح کی گئی، اور اس جرح کے دوران 3 امپورٹنٹ انکشافات ہوئے، 3، اور وہ تینوں کے تینوں انکشافات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا اعتراف کر لیا گیا آج کورٹ کے روبرو کہ عمران خان کی طرف سے جو پیسے بھجوائے گئے، یعنی $3 ملین یعنی $30 لاکھ، وہ 2 آف شور کمپنیز کو دیے گئے، اور انہوں نے خود عدالت میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ یہ آف شور کمپنیز حقیقی معنوں میں قانونی طور پر رجسٹرڈ تھیں یا یہ بے نامی اکاؤنٹس تھے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ خواجہ آصف صاحب نے جس وقت عمران خان پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے جو فنڈز ہیں ان پر یہ الزام لگایا کہ عمران خان صاحب نے یہ ریئل اسٹیٹ گیمبل کیا ہے، ریئل اسٹیٹ پر جوا کھیلا ہے، تو اس وقت تک یہ پیسے شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں موجود نہیں تھے، اور خواجہ آصف صاحب کی طرف سے اس انکشاف کے بعد وہ پیسے شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں لائے گئے۔ یعنی جب یہ اسکینڈل سامنے آیا، خواجہ آصف صاحب نے وہ دستاویزات شوکت خانم کے خود آڈٹ رپورٹ شیئر کی، تو اس کے بعد جب عمران خان کو محسوس ہوا کہ یہ بات اب آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر انہوں نے اس بندے کو جس کے ذریعے انہوں نے یہ سرمایہ کاری کی تھی، انہوں فون کی طرح کہ یار اتنے مسئلہ پہ گیا، پیسے فٹافٹ بھیج، اور اس کے بعد اس نے وہی $3 ملین شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے، اور 7 سال تک یہ پیسے اپنے پاس رکھے، اور ان پیسوں پر 1 روپیہ بھی پروفٹ نہیں کمایا گیا، حتیٰ کہ وہ جو ڈفرینشل تھا، یعنی پاکستان کے روپے میں اور ڈالر کی قیمت کے اندر جو فرق تھا، اس فرق کو ہی اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو یہ بھی کروڑوں روپے بنتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اس حوالے سے بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ دوسرا پہلو اسی انکشاف کا جو عمران خان صاحب نے کیا کہ جناب یہ جو پیسے تھے یہ انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی سرمایہ کاری کمیٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، اور اس کمیٹی کے اندر وہ صاحب موجود تھے جن کا نام انہوں نے بتایا امتیاز حیدری۔ امتیاز حیدری صاحب اس سرمایہ کاری کمیٹی کے ممبر تھے۔ اسی سرمایہ کاری کمیٹی کے ممبر یعنی امتیاز حیدری صاحب کی کمپنی کے اندر وہ پیسے انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر امتیاز حیدری صاحب کی ہی آف شور کمپنیز کے ذریعے عمان کے ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے اندر پیسے لگائے گئے، جو امتیاز حیدر صاحب جس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ امتیاز حیدری صاحب کون ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں۔ امتیاز حیدری صاحب کون ہیں؟ جو ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں۔ امتیاز حیدری صاحب کون ہیں؟ جو شوکت خانم کے ڈونر رہے ہیں 16 سال تک۔ امتیاز حیدری صاحب کون ہیں؟ جو پی ٹی آئی کے جب سے قیام ہوا اس وقت سے لے کر اب تک ڈونر رہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ عمران خان صاحب کے دوست کی کمپنی کے اندر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے پیسے کو ٹرانسفر کیا گیا، اور اس کے بعد سب لوگ بھول گئے کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، اور اگر یہ پیسے یہاں سے باہر بھیجے گئے، یعنی اس پیسے کا کسی اور جگہ پر استعمال کیا جانا تھا اور وہ ذاتی فائدے کے لیے کیا جانا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نامی آف شور کمپنیز کے اندر ان پیسوں کو رکھ کر منی لانڈرنگ کا جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اس شخصیت کی طرف سے جس
जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी साकिब निसार ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया था। अब आप इस पर खुद ही बता सकते हैं कि जनाब क्या सिचुएशन है। और तीसरा और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इंकशाफ ये है कि सिर्फ $3 मिलियन नहीं बल्कि $18 मिलियन अलग से भी इन्वेस्ट किए गए। खुद आज इसी समात के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने तो 2007 की ऑडिट अकाउंट्स की रिपोर्ट का हवाला दिया था, जबकि 2009 और 2010 में भी पाकिस्तान से $18 मिलियन रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बैरून मुल्क भिजवाए गए और वो $18 मिलियन डूब गए। कारोबार में नुकसान हो गया, 1 टका वापस नहीं आया। और अगर वो पैसे वापस आए होंगे तो फिर कैसे आए होंगे? फिर वो जो पैसे यहाँ से गए वो शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट में आने की बजाय आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में मुख्तलिफ डोनर्स के ज़रिए। वही 40,000 डोनर्स जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते रहे हैं कि जनाब मेरे को 40,000 डोनर्स का डाटा पे है, मैं तो ये डोनर्स का डाटा जो है वो मैं जमा करा दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात साबित कर दी कि भाई तूने तो ये वाले पैसे भी खाए हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल चलाया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, यूं पैसे घुमाकर बैरून मुल्क भिजवाना और बैरून मुल्क से यूं पैसे घुमाकर वापस पीटीआई के अकाउंट में लेके आना ताकि पीटीआई की अपनी सरगर्मियां चल सकें और इमरान खान साहब के खजाने भरे जा सकें। ये है वो सारे का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। यहां से पैसे जाते हैं $3 मिलियन, $3 मिलियन 2007 के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं ओमान के अंदर। और उसके बारे में जब सवाल पूछा जाता है कि जनाब इस कंपनी का मालिक कौन है, तो इमरान खान साहब कहते हैं वही शख्सियत है जो शौकत खानम के बोर्ड का मेंबर भी है और सरमायाकारी कमेटी का रुकन भी है, और उसी शख्स की कंपनी जो ओमान में है जिसके साथ शेख सलीम साहब जिसके पार्टनर हैं, ओमानी शख्सियत हैं, उनके वो वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता कि वो पैसे कहाँ गए। तो फिर सवाल तो बड़ा लॉजिकल डेवलप हो जाता है, जनाब के पैसे किधर गए? पैसे जहाँ पर गए तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे महफूज रहे और फिर ये जो मुख्तलिफ जो 40,000 अकाउंट वो जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के डेटा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए और वहाँ से थोड़े करके पीटीआई के अकाउंट में आए और फिर यहाँ से दीगर काम चले। अब ये जो खुद इंकशाफ है वो इमरान खान साहब की तरफ से किया गया, ये किसी और बंदे की तरफ से नहीं किया गया। और इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर इस बात का इतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि $3 मिलियन की रकम 7 साल तक HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। ये वही इम्तियाज़ हैदरी हैं जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं। इम्तियाज़ हैदरी उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने $3 मिलियन की रकम की सरमायाकारी करने की मंजूरी दी। $3 मिलियन की सरमायाकारी उसी इम्तियाज़ हैदरी के कंपनी में गई जिस कंपनी के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये कौन कह रहा है? इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान ने इस बात का एतराफ़ खुद किया कि बोर्ड मीटिंग्स में इस सरमायाकारी से मुतल्लिक बात हुई थी। जब ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। तो भाई कादा हित तक इज़्ज़त है। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से आयद किए जाने वाला इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था कि जनाब वो पैसे गए हैं और पैसे वापस नहीं आए। और जब ये इंकशाफ हुआ तो फिर खलबली मच गई कि जनाब पैसे क्यों वापस लेके आने हैं। फिर उसके लिए राब्ते किए गए, फिर उसके लिए दौड़ धूप की गई, फिर कहा गया कि जनाब ये पैसे फटाफट भेजो। फिर वो पैसे भेजे गए। फिर इमरान खान ने बताया कि जनाब वो जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे वो तो पैसे महफूज हैं, वो तो हमारे अकाउंट में वापस आ गया। ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहा है, लेकिन अदालत है ना, अदालत के अंदर तो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। वो पैसे कब गए तो अगर बैंकिंग चैनल के ज़रिए गए तो उसका भी रिकॉर्ड है, पैसे कब वापस आए इस बात का भी रिकॉर्ड है, ख्वाजा आसिफ ने कब बयान दिया इस बात का भी रिकॉर्ड है, इमरान खान ने कब हद तक इज्जत का दावा किया इस बात का भी रिकॉर्ड है। और अब इस चक्कर से बाहर कैसे निकलना है? आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब तो ये पाकिस्तानी इदारों के लिए एक ऐसी चीज़ सामने आ गई है जिसके ज़रिए अब इमरान खान साहब के लिए बचने के इम्कानात बड़े कम हैं अगर इस बात की प्रॉपर्ली तहकीकात हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल वैसे ही पल्ला झाड़ने की कोशिश की है जैसे उन्होंने फॉरेन फंडिंग
फंडिंग केस के अंदर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। भाई मैं तो पार्टी चेयरमैन हूं, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो सिर्फ पॉलिसी मैटर्स को देखना है, मैंने तो एक एक रुपए का मैं तो हिसाब नहीं रख सकता। मेरे सामने जो अकाउंटेंट ने चीज दी, मैंने उससे पूछा कि भाई ये बात दुरुस्त है, उसने कहा हाँ जी दुरुस्त है, मैंने दस्तखत कर दिए। इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल वो इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में की थी, और यहां पर भी उनका यह कहना था कि जनाब मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन हूं, मुझे नहीं पता होता कि कौन सी चीजें हो रही है, मुझे इस बात का नहीं पता कि ओमान में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था। ये इन्वेस्टमेंट की मंजूरी पहले सरमायाकारी कमेटी ने दी, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दी, और उसके बाद ये पैसा वहां पे ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर क्या हो रहा है। हाँ, मुझे इम्तियाज हैदरी पर बड़ा एतमाद था, इम्तियाज हैदरी पर मुझे भरोसा था, इसलिए मैंने इस इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दी। भाई ये पैसे आपकी कुछ ज़ाती वरासत के पैसे नहीं थे, ये पाकिस्तानियों ने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने शौकत खानम में आपके ऐलान के मुताबिक गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दिए थे। ये पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पैसे नहीं दिए गए थे, ये पैसों को यूं घुमा कर वापस लेके आने के लिए नहीं दिए गए थे। ये वूटन क्रिकेट लिमिटेड नहीं है जहां पर आरिफ नकवी साहब ने अरब शहजादे से पैसे लिए, एक नुमाइशी मैच कराया, वहां पर आप गए, वहां पर आपने बॉलिंग की, टी शर्टें पहनी और वहां से पैसे इकट्ठे करके यहां पर ले आए शौकत खानम में, फिर पैसे बाहर चले गए, फिर घुमा के आ गए। ये चक्कर है ये सारे के सारे इसके अंदर। और इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम बिल्कुल बहुत हद तक दुरुस्त है। इमरान खान साहब के इन इंकशाफात के बाद जो उन्होंने खुद कर दिए हैं इमरान खान साहब के लिए, अब एक और कट्टा खुलने वाला है, एक और स्कैंडल आने वाला है, और ये एक मेगा स्कैंडल होगा जिसके ज़रिए ये सारी की सारी इमरान खान की जो वो है ना मिस्टर क्लीन, मेरी नज़र में तो वो नहीं है मिस्टर क्लीन। मेरी नज़र के अंदर तो ये बात काफ़ी है कि किस किस जगह पर कहाँ से यार जो बंदा तोशा खाना में मिलने वाली चीज़ों को ओपन मार्केट में बेचते, कतई नज़र इस बात के कि उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जनाब ये जो तोहफे आए हैं ये आपको रिटेन करने हैं, यानी अपने पास रखने हैं। रिटेन का मतलब ये कि अपने पास रखने हैं और उसकी रिटेनरशिप आपको फीस अदा करनी है। ये आपने को जाकर प्लाट खरीद नहीं लिया, ये जो तोहफे मिले ये आपने खरीद नहीं लिए, ये आपके जो पैसे अदा कर रहे हैं 20%, 25%, 50%, ये इस वजह से अदा कर रहे हैं कि आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर रखेंगे कि और शीशे के बक्स में जिस पे आप लिखा होगा गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय हिज एक्सीलेंसी क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, आगे डेट और ईयर, वो फ्रेम करा के रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं। लेकिन आपने कहा कि नहीं जनाब ये रिटेनर का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, रिटेनर का मतलब कुछ और है। अपने वालों मतलब भी बनाता, घड़ी बेच भी दी, बल्कि घड़ी क्या हर एक चीज़ बेचती। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा पैसों के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकता है। अब भी ये जो चीज़ें सामने आई हैं इम्तियाज़ हैदरी साहब, तो बड़ी बात क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बंदा कौन है? इमरान खान का दोस्त। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसका? शौकत खानम का। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? इमरान खान। सरमायाकारी कमेटी किसने बनाई? इमरान खान ने एज चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। उसके अंदर कौन है? इमरान खान का दोस्त। दोस्त का नाम क्या है? इम्तियाज़ हैदरी। पैसे इन्वेस्ट करने की मंजूरी किसने दी? इम्तियाज़ हैदरी। कहाँ पर पैसे जाएंगे? इम्तियाज़ हैदरी के अकाउंट में। इम्तियाज़ हैदरी क्या करेगा? वो जाके ओमान के अंदर रियल स्टेट का प्रोजेक्ट बनाएगा। उस कंपनी का मालिक कौन है? इम्तियाज़ हैदरी। कहानी बड़ी सीधी सी है। अब इसके बाद अगर पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की NAB, अगर इसके बाद भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो इन इदारों को बंद कर देना चाहिए। ये एक सिंपल सा रास्ता है, क्योंकि अगर आपने डर डर के सहम के यबक के काम करना है ना, तो इससे बेहतर है कि इन इदारों को बंद कर दें, क्योंकि इनका तो सारे का सारा मलबा मेरे और आप पे गिरता है, आम आदमी पे गिरता है, माठे पे गिरता है, कमज़ोर पे गिरता है। ताकतवर को पकड़ने की इनमें सकत नहीं है। अब ये जो इंकशाफ जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो बातें हैं जो अदालती रिकॉर्ड पे है।
جو عمران خان صاحب کی طرف سے آج عدالت کے اندر یہ باتیں جرا کے اندر کی گئی ہیں اور عدالتی عملے نے ٹک 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 ٹائپ کر کے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے۔ اب اس سے پیچھے ہٹنا، اس سے مکرنا کہ جناب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ جو شیخ سلیم ہے یہ کون ہے، بھائی آپ کو نہیں یاد نا، لیکن یہ بات خواجہ آصف کے وکیل کو یاد ہے کہ وہ شیخ سلیم کون ہے۔ پھر خواجہ آصف کا وکیل آپ کو بتاتا ہے کہ شیخ سلیم کون ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، میری پتہ نہیں کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ جو سارے کے ساری باتیں کی ہیں یہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ وہاں سے عدالتی ریکارڈ سے آج کی سماعت کا احوال نکالا جائے اور اس کے بعد کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ عمران خان کا کھیل ختم، میرٹ پر کھیل ختم، بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جناب یہ پیسے واقعتاً منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے گئے۔ خواجہ آصف کا یہ الزام 100% درست ہے، کیونکہ اگر یہ انکشاف نہ ہوتا تو انہی پیسوں نے بعد میں پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آنا تھا اور یہاں پر انہوں نے سیاست کے لیے استعمال ہونا تھا، اگرچہ وہ پیسے پاکستان میں سیاست کے لیے نہیں بھجوائے گئے تھے، وہ غریبوں کے مفت علاج کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔